Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman emphasized that sustaining India's growth momentum over the next 2 decades requires a fresh approach based on bold reforms, stronger domestic capacities, renewed institutional partnership, and adaptive strategies tailored to the changing global landscape. She highlighted that the foundation for this transformation has already been laid in the last 2 union budgets, which introduced a clear multi-sectoral policy agenda aimed at fostering long-term growth and development. Domestically, over the next 2 decades, sustaining India's growth momentum calls for a fresh approach grounded in bold reforms, stronger domestic capacities, renewed institutional partnership, and adaptive strategies suited for the evolving global landscape. The last 2 union budgets have laid the groundwork for this transformation with a clear multi-sectoral policy agenda. Domestically, over the next 2 decades, sustaining India's growth momentum calls for a fresh approach grounded in bold reforms, stronger domestic capacities, renewed institutional partnership, and adaptive strategies suited for the evolving global landscape. The last 2 union budgets have laid the groundwork for this transformation with a clear multi-sectoral policy agenda. Domestically, over the next 2 decades, sustaining India's growth momentum. Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah addressed the ongoing Ramban landslide situation, stating that it was the 3rd consecutive day of monitoring and response. He noted that senior ministers had visited to the site daily and he himself had inspected the situation on foot the previous day. Emphasizing that saving lives was the top priority, he confirmed that people had been evacuated and moved to safe locations. The second priority, he said, was restoring road connectivity, with efforts already underway. Officials have assured that a single track of the highway would be reopened within 24 hours, with the debris removal to follow. Relief material are being distributed, and once restoration is complete, compensation will be provided as per SDRF and NDRF norms. He expressed confidence in receiving full support from the central government. ये तीसरा दिन है। 3 दिन में लगातार तीसरी बार इंडिया के तरफ से सीनियर जो है मिनिस्टर यहाँ आए। पहले दिन मौके पे 2 MLA डिप्टी CM साहब के साथ आए, अफसरों के साथ बात हुई, सिलसिला शुरू हुआ। कल मैं खुद श्रीनगर से होते हुए जहाँ गाड़ी रुकी वहाँ से पैदल आके मैंने हालात का मुआयना किया। अब यहाँ से आके चंद्रकोट रुक के मैं यहाँ इस तरफ से देख रहा हूँ। काम में जितनी तेजी लाई जा सकती है लाई जा रही है। मैं एक चीज़ के लिए आपसे कहूँ, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि कीमती जानें जो हैं वो ना जाएं, तो मौके से हमने लोगों को निकाला, गाड़ियों से निकाला, घर से निकाला, उनको दूसरी जगह बसाए। ठीक, अब हमारी दूसरी प्रायोरिटी है कि सड़क जो है उसको दोबारा जोड़ दिया जाए, क्योंकि जब तक हम सड़क नहीं जोड़ते तब तक यहाँ पे मटेरियल और ये सारी चीज़ें लाना हमारे लिए मुश्किल होगा। अब सड़क का हाल आपने खुद देखा, जगह जगह पे हमारे डोजर ये जो टिपर जो है ये काम कर रहे हैं। अफसरों ने मुझे यकीन दिलाया है कि इनकी पूरी कोशिश है कि 24 घंटे के अंदर अंदर सिंगल ट्रैक पे जो है ये हाईवे जो है खोल पाएंगे। जब हाईवे खुलेगा उसके बाद जो बाकी मलबा है उसको हम उठाने का काम करेंगे। फिलहाल लोगों को सही सलामत कहीं पर बसाने का काम वो हम कर रहे हैं, जब तक इनके घरों को हम रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। जो बाकी रिलीफ इन तक पहुंचाना होगा, इमरजेंसी में रेड क्रॉस के तहत इनको जो रिलीफ देना है वो DC साहब को कहा गया है रिलीफ दें। जब रिलीफ ये मतलब रिकवरी का काम खत्म हो जाएगा, फिर हम असेसमेंट करके जो भी इनका नुकसान है उसको फिर NDRF और SDRF के नॉर्म्स के तहत जो हमें रिलीफ देना होगा हम दे देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह के इसको एक डिजास्टर जोन तैनात करके जो मरकज से हमें मदद चाहिए होगी, मुझे पूरा उम्मीद है
कि मरकज़ के तरफ से जो हमें मदद मिलनी चाहिए वो मिलेगी। जो यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार घूम रहा है सफ़ेद टोपी पहन के, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके यहाँ सियासत कम और दिल्ली में ज़रा सियासत ज़्यादा करें। वो ज़रा दिल्ली बात करके यहाँ के लिए एक खसूसी पैकेज का इंतजाम करें, बड़ी अच्छी बात होगी। दादन क्या लग रहा है कि मौसम का मिजाज तो बदल गया, बहुत तो समय लग रहा है, स्थिति को सुधार में लाने में कितना वक्त लगता है? मैंने जैसे आपसे कहा, हमारी मुकम्मल कोशिश है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हाईवे जो हम खोलें, लेकिन आगे के लिए ये इस तरह के हालात ना बने। आपने अक्सर बेशतर सुना होगा, यहाँ जो लोकल लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे एक कलवर्ट था, उस कलवर्ट को यहाँ हाईवे का जो ठेकेदार है उसने उस पर गड़बड़ की, तब जाके नुकसान हुआ। अब हाईवे वालों को ये देखना होगा कि जहाँ जहाँ काम हो, काम का जो है खमियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना ना पड़े। ये सड़क बनती है हमारे राहत के लिए, अगर ये सड़क हमारे नुकसानदेह साबित हो तो इस सड़क का फायदा क्या? तो इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के साथ और खासकर जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे हैं गडकरी साहब, मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ देर के बाद उनको मौके पे लाके हम यहाँ रिव्यू करें कि किस तरह हम इस सड़क को जो है स्टेबल कर सकें। ये तीसरा दिन है, 3 दिन में लगातार तीसरी बार इंतजामिया के तरफ से सीनियर जो है मिनिस्टर यहाँ आए। पहले दिन मौके Madhya Pradesh Minister Kailash Vijayawagiriya responded to Rahul Gandhi's remarks made in Boston about the Election Commission of India, stating that the Congress party has reduced the constitution to a mockery. He pointed out that the original copy of the constitution features image of Lord Rama and Lord Hanuman, questioning whether the version carried by Congress leaders includes these depictions. Vijayawagiriya further accused the Congress of historically undermining the constitution, particularly during the emergency, which he said silenced democracy and turned India into a prison. He criticized Congress leaders for making statements abroad that he claimed would damage the reputation of the country's institutions. कांग्रेस ने जितना संविधान के साथ मजाक उड़ाया होता तो किसी ने नहीं उड़ाया। जो व्यक्ति जेब में संविधान लेके चल रहा है, वह संविधान की मूल प्रति में यदि आप देखें तो भगवान राम का चित्र है, हनुमान जी का चित्र है, वो सब उनके संविधान जिस जो पॉकेट में लेके घूम रहे हैं उसमें है क्या? पहली बात। दूसरी बात, संविधान की धज्जियां हमेशा कांग्रेस ने उड़ाई। आपातकाल लगाकर डेमोक्रेसी ख़त्म की थी। आपातकाल में जिस तरीके से पूरे देश को जेल बना दिया था, ये हम सब ने देखा है। और अभी जब एनडीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, जब एक बिल हमने स्वयं ने पत्रकारों के बीच में फाड़ते हुए देखा है, उसी नेता को, और अब हम देख रहे हैं कि वही नेता देश के खिलाफ, देश के संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ विदेशों में बयानबाजी कर रहे हैं। इससे क्या देश का सम्मान बढ़ेगा? मुझे बहुत कहते हुए दुख है कि सिर्फ संविधान का उपयोग राजनीतिक कारणों से नहीं करना चाहिए। संविधान के आधार पर उस पार्टी को चलना भी चाहिए। यदि कांग्रेस संविधान के आधार पर चलती तो शायद कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती कि एक जहाँ से सूर्योदय होता है और जहाँ अस्त होता है वहाँ कांग्रेस थी। आज कांग्रेस बहुत छोटे से एरिया के अंदर सिमट के रह गई है। उसका कारण यही है कि उनका चेहरा कुछ और है और करते कुछ और है, बोलते कुछ और है। कांग्रेस ने जितना संविधान के साथ मजाक उड़ाया होता तो किसी ने नहीं उड़ाया। जो व्यक्ति जेब में संविधान लेके चल रहा है, वह संविधान की मूल प्रति में यदि आप देखें तो भगवान राम का चित्र है, हनुमान जी का चित्र है, वो सब उनके संविधान जिस जो पॉकेट में लेके घूम रहे हैं उसमें है क्या? पहली बात। दूसरी बात, संविधान की धज्जियां हमेशा कांग्रेस ने उड़ाई। आपातकाल लगाकर डेमोक्रेसी ख़त्म की थी। आपातकाल में जिस तरीके से पूरे देश को जेल बना दिया था, ये हम सब ने देखा है। और अभी जब एनडीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, जब एक बिल हमने स्वयं ने पत्रकारों के बीच में फाड़ते हुए देखा है, उसी नेता को, और अब हम
Congress leader Supriya Senate responded to Rahul Gandhi's statement on the Election Commission during his visit to the US, raising concerns about the fairness of elections in India. She questioned how more votes were cast in Maharashtra than the adult population, citing that 9.70 crores votes were cast despite the adult population being 9.54 crores. She also pointed out the addition of 49 lakh voters in just 5 months and criticized the Election Commission denial of a videography request and rule changes. Senate expressed doubts over the election process, suggesting several irregularities. विदेश धरती पर गए हुए हैं, इसको लेकर जो उन्होंने बयान किया है, चुनाव प्रणाली को गंभीर समस्या बताया है, तो किस तरह देखते हैं? आपको क्या लगता है इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं? आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में जहां पर 9 करोड़ 54 लाख वयस्क आबादी है, अडल्ट आबादी है, वहां पर 9 करोड़ 70 लाख वोटर कैसे बन सकते हैं? 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर जुड़े और 5 महीने में 39 लाख वोटर जुड़ गए। जब वीडियोग्राफी मांगी गई तो बजाय वीडियोग्राफी के प्रूफ देने के इलेक्शन कमीशन ने नियम ही बदल दिए। 5:30 बजे के बाद 65 लाख वोट बढ़ गए। एक वोट पड़ने में 3 मिनट लगता है। क्या 2 बजे तक महाराष्ट्र में लाइनें लगी हुई थी? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस देश की चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाती हैं और अंततोगत्वा लोकतंत्र की मजबूत नींव पर प्रहार करती हैं। और राहुल जी ने जो बातें कही वो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका कर्तव्य है कहना, अगर वो ना कहते तो गलत करते। अपमान कर रहे हैं देश का, वो विदेश जाकर बीजेपी इससे बेहतर और क्या कह सकती है? मोदी जी तो चाइना और दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन और जर्मनी और कनाडा और यूएस जाकर कहते हैं 2014 से पहले जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो कोसता था। मेरे पास बाइट्स भी अभी सुनाऊंगी आप लोगों को। तो क्या मोदी जी अपने जन्म को कोसते थे? मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी पैदा होने से ज्यादा बड़ा गर्व और किसी बात का हो ही नहीं सकता है। बीजेपी के पास मुद्दों पे बात करने के अलावा बाकी सारी नौटंकी करने का टाइम है। बीजेपी सरकार ने 16 महीने विदेश धरती पर गए हुए हैं, इसको लेकर जो उन्होंने बयान किया है, चुनाव प्रणाली को गंभीर समस्या बताया है, तो किस तरह देखते हैं? आपको क्या लगता है इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं? आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में जहां पर 9 Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma addressed the Sankalp Divas celebrations in Churu, where he criticized the Congress party. He remarked that Congress had ruled the country the most, whether at the centre, state or in Haryana. He stated that while the Congress frequently speaks on various issues today, during their regime they only gave the Garibi Hatao slogan but never had any true connection with the poor or took substantial actions to the elevative poverty. इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर राज किया है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे प्रदेश में हो या हरियाणा में हो, सबसे ज्यादा अगर इस देश में राज किया है तो कांग्रेस ने किया है। लेकिन आज बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। मैं देखता हूं कितने लोग शेखावाटी के कांग्रेस के लोग यहाँ प्रदेश में भी मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया, यमुना के जल का भी झांसा दिया। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि गरीब से कभी नाता नहीं रहा और कांग्रेस का शेखावाटी से कभी नाता नहीं रहा कि मेरे शेखावाटी को पानी मिले, मेरे शेखावाटी का विकास हो। यह मैं आपको तथ्यपूर्ण बता रहा हूं। अगर इसमें कहीं योगदान रहा तो 93 में 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमारे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी ने हरियाणा सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए पत्र लिखा था कि यमुना का पानी हमें मिलना चाहिए। कांग्रेस ने कभी प्रयास भी नहीं किया, प्रयास भी नहीं किया। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर राज किया है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे प्रदेश में हो या हरियाणा। Bangalore Police Commissioner B. Dayananda confirmed that the arrest of one person in connection with the killing of
former Karnataka DGP Om Prakash, identifying the arrested individuals as the deceased wife. Considering the sensitivity of the case, he stated that the investigation has been handed over to the city crime branch, which will take over the probe at the earliest. With regard to the murder case registered in HSR Layout Police Station, one person has been arrested, that is the wife of the deceased. Further investigation is in progress. Keeping in mind the sensitivity of the case has been given to the city crime branch and they will take over the investigation as quickly as possible and further proceed with the investigation. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ನನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. With regard to the murder case registered in HSR Layout Police Station, one person has been arrested, that is the wife of the deceased. Further investigation is in progress. Keeping in mind the sensitivity of the case has been given to the city crime branch and they will take over the investigation as quickly as possible and further proceed with the investigation. Union Minister Giriraj Singh commented on the West Bengal BJP's demand for separate polling booths for Hindu voters, stating that the demand reflects a concerning ground reality in the state. He alleged that under the leadership and patronage of Mamata Banerjee, Muslims in Bengal often immediate Hindu voters during elections, obstructing them from exercising their democratic rights. Singh emphasized that in light of such conditions, the BJP's demand in Bengal holds significance and cannot be dismissed. देखिए, ऐसे तो जो बीजेपी बंगाल ने मांग की है वो बताता है कि बंगाल के मुसलमान जिस ढंग से ममता बनर्जी के नेतृत्व में, ममता बनर्जी के पैट्रोनेज में वहां हिंदू वोटरों को चुनाव में भी धमकाते हैं और वोट डालने नहीं जाते हैं। इसलिए बंगाल बीजेपी ने ये जो मांग की है उसके मांग में दम है कि आखिर वो वहां के मतदाता हिंदू इतने डरे हुए हैं ममता बनर्जी के व्यवहार से कि अगर इस पर चुनाव आयोग कोई स्पेशल एक्शन नहीं लिया तो बड़ी कठिनाई होगी वहां के वोटरों को, हिंदू वोटरों। देखिए, ऐसे तो जो बीजेपी बंगाल ने मांग की है वो बताता है कि बंगाल के मुसलमान जिस ढंग से ममता बनर्जी के नेतृत्व में, ममता बनर्जी के पैट्रोनेज में वहां हिंदू वोटरों को चुनाव में भी धमकाते हैं और वोट डालने नहीं जाते हैं। इसलिए बंगाल बीजेपी ने ये जो मांग। Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini inaugurated the Sri Radha Krishna temple at the premises of Madhav Gaushala in Sukhdarshanpur village, Panchakula. During the inauguration, he expressed his gratitude, stating, "This was my fortune, my wishes to all the people for the installment of the divine temple." The event was marked by a sense of joy and reverence as the temple was unveiled to the public. कि माधव गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट में आज इस शुभ अवसर के ऊपर श्री राधा कृष्ण मंदिर का लोकार्पण भी हुआ है। भगवान श्री कृष्ण और राधा आज इस भूमि के ऊपर विराजमान हुए हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरा ये परम सौभाग्य भी है कि शिवालिक की गरिमालाओं की गोद में श्री माधव गौशाला में आज भगवान श्री कृष्ण का रूप आज यहाँ विराजमान है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं इस अवसर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवा करके प्रणाम करता हूं और आप सबको
इस पावन मंदिर की स्थापना के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब महानुभाव को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। कि माधव गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट में आज इस शुभ अवसर के ऊपर श्री राधा कृष्ण मंदिर का लोकार्पण भी हुआ है। भगवान श्री कृष्ण और राधा आज इस भूमि के ऊपर विराजमान हुए हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरा ये परम सौभाग्य भी है कि शिवालिक की गरिमालाओं की गोद में श्री माधव गौशाला में आज भगवान श्री कृष्ण का रूप आज यहाँ विराजमान है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं इस अवसर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवा करके प्रणाम करता हूं और आप सबको इस पावन मंदिर की स्थापना के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब महानुभाव को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। After meeting with Union Home Minister Amit Shah, Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Dio Sai, accompanied by Deputy CM and State Home Minister Vijay Sharma, addressed the discussions regarding the recent changes in the penal code to the Bharatiya Nyaya Sanhita. CM Sai mentioned that Amit Shah analyzed the situation in the state following the implementation of these new laws and expressed satisfaction with the results. यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ बैठक हुआ, जिसमें हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, हमारे सभी अधिकारीगण और माननीय अमित शाह जी और भारत सरकार के सारे अधिकारी उपस्थित थे। और इसमें जो नए कानून 1 जुलाई 2024 से इस देश में लागू हुए हैं और दंड संहिता को बदलकर न्याय संहिता किया गया है, और इस नए कानून के लागू होने के बाद प्रदेश में क्या स्थिति है उस पर उन्होंने समीक्षा की और करीब 1 घंटे तक समीक्षा बैठक चला। और हमारे प्रदेश में जो परफॉर्मेंस है उससे वो संतुष्ट हैं और सराहना की। इसके यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ बैठक हुआ, जिसमें हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, हमारे सभी अधिकारीगण और माननीय अमित शाह जी और भारत सरकार। On the violence in Murshidabad, National Commission for Women (NCW) Chairperson Vijaya Rahatak expressed concern over the situation, describing it as very bad. She highlighted the large-scale communal violence, including the burning and vandalizing of homes, and an ongoing atmosphere of fear. Rahatkar also noted multiple cases of molestation of women, with women and children being the most affected, having been displaced from their homes. She mentioned that despite seeking appointments with the State Secretary and the DGP, she was not given an audience, and added that she was unable to meet with the West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. मुर्शिदाबाद की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा हुई है, लोगों के घरों को जलाया दिया गया है, तोड़ दिया गया है, व्हीकल्स को भी जलाया दिया है। बहुत भयंकर हिंसा और डर का माहौल आज भी वहाँ पे है। वहाँ पे लोगों को मारा है, महिलाओं को प्रताड़ित किया है, उनके साथ मॉलेस्टेशन की अनेक घटनाएं भी घटी है। और इसका सबसे बुरा असर तो महिलाएं, बच्चों के ऊपर ही आया है। आज ये सब लोग अपने घर से विस्थापित हो गए हैं। उनको लगता है कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, वो आम लोग हैं।
अपने ही भूमि में उनको अपनी ही भूमि को छोड़ना पड़ रहा है, पलायन करना पड़ रहा है। इसका बहुत बड़ा दर्द भी उनके मन में है। ममता बनर्जी खुद एक वेस्ट बंगाल की महिला है, मुख्यमंत्री, उनके देश में इस तरीके की सारी घटना के बाद उनको कोई रिएक्शन, आपसे उनकी मुलाकात हुई तो कुछ आपसे उनकी कोई बातचीत हुई? मेरी उनके साथ कोई ऐसी बातचीत या मुलाकात नहीं हुई है, पर हम जैसे हमने ज़रूर स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी है और डीजीपी है उनका हमने समय मांगा था, पर उन्होंने समय नहीं दिया। पर ठीक है, हम अपना काम करके आए हैं। मेरा सबसे पहला काम मैं इसीलिए गई थी कि वहाँ के महिलाओं को हम कुछ सामर्थ्य दे दें, वहाँ की महिलाओं की हम हिम्मत बांध सके, उनको हम विश्वास दे सके। ये करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो बहुत दुखी भी है, टूट भी पड़ी है, बहुत सदमे में है, तो उनको अभी तुरंत आधार देने की ज़रूरत थी और इसके लिए जाना बहुत ज़रूरी था। मुर्शिदाबाद की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा हुई है, लोगों के घरों को जलाया दिया गया है, तोड़ दिया गया है, व्हीकल्स को भी जलाया दिया है। बहुत भयंकर हिंसा और डर का माहौल आज भी वहाँ पे है। वहाँ पे लोगों को मारा है, महिलाओं को प्रताड़ित किया है, उनके साथ मॉलेस्टेशन की अनेक घटनाएं भी घटी है और इसका सबसे बुरा असर तो महिलाएं, बच्चों के ऊपर ही आया। That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CVR English News.